नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल ट्रांसफॉर्म एंड ग्रूव्स में। आज हम बात करेंगे वुमेन्स हेल्थ के बारे में और उसके लिए मैंने इनवाइट किया है डॉक्टर प्रीति काले। शी इज एक्सपर्ट इन गायनेकोलॉजी कॉस्मेटोलॉजिस्ट। वेलकम मैम मेरे चैनल ट्रांसफॉर्म एंड ग्रूव्स में। I really congratulate you, Sneha, and I really thank you from bottom of my heart that you have invited me on this wonderful show. I really love to contribute and guide all your followers and all your listeners. थैंक यू सो मच मैम। आज हम बात करेंगे वुमेन्स हेल्थ पे और आज सिर्फ मुद्दे की बात होगी जो हम मैम के साथ करेंगे। तो मैम शुरू करते हैं। Yes, let's begin, Sneha. ओके मैम। मैम यू आर इनटू सो मच एस्पेक्ट्स ऑफ गायनेकोलॉजी, सो मैम हम कहाँ से शुरू करें? Okay, so the story begins 28 years ago when I started my education. ओके मैम, And the scenario at that time was totally different that is there today. आई कैन अंडरस्टैंड। The problems that women were facing during that era was totally different, and the today's modern lady is facing so many problems which are absolutely different. And how I have come to know this, one of my patient taught me. She was very much interested into her beautification of private parts, which was she was facing every day. ओके So she asked me, ma'am, can you help me in this? And then I realized, really, this is a upcoming problems which women are facing, and they cannot go and ask to anyone. So who else there is there to help them? Only a gynec एग्जैक्टली or a best friend. So So lots the of friends women, like you. lots of women are not comfortable talking Yes, to that. true. Yeah. So luckily, I got to know about one course at Dubai, and I went immediately and I took training. Oh, nice. And we started Glam Gynae Clinic 5 years ago. okay. We treat all problems women which are facing at their private parts. That's why it's labeled as gynec cosmetology. Okay. So आप जैसे पूछ रहे हैं कि जो women's health, so health starts from the brain and it goes to the genital parts. If woman is healthy internally, she is happy for her all works, her profession and her growth. एग्जैक्टली मैम। बट आज कल ये इस बारे में बात करने में लोग हेजिटेंट होते हैं, लोग इजीली ये नहीं समझ सकते मैम। True. तो ये बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा मैम? The girls like you are the wonderful medium who Okay. are friends to a lot of girls, lot of women, and they know now they know the platform how they can ask you, how they can connect to you, and I am always there. They can come anytime to me. So let's come to the problems they are facing nowadays. The important problems they are nowadays having intimacy or having sexual activity during their busy schedule. They have Exactly. very limited time यस मैम, given to that part which is very important to stay healthy, यस and they are facing. So we have different treatments for those problems. लाइक मैम व्हाट इज दिस गायनेक कॉस्मेटोलॉजी एग्जैक्टली? Basically, gynec cosmetology means beautification of private parts. ओके Or enjoy your sexual desire, enjoy your sexual activity. Nowadays, the limits and the desire and the requirements of sexual activity are totally changed. चेंज्ड, करेक्ट मैम। People are getting married multiple times. 2 बार शादी, 3 बार शादी. They have liberty to select their partners. They have liberty to have live-in relations. मैम ये इम्पैक्ट करता है क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे? Yes, ओके definitely. This impacts the reproductive health. Like in one marriage, if she has underwent a delivery, ओके of course her genital organs have become loose. They Yes. have become traumatized. There are certain injuries, repairs. Of course, she is going to feel hurdle after few years. So we are there to help to treat that and make it beautiful, look beautiful, feel confident. ओके नाइस मैम, नाइस टू नो दैट मैम। मैम ये प्रॉब्लम्स तो 30+ लोगों के लिए हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट टीनेजर्स एंड अडल्ट्स? I love this smart question. See, 30 and above definitely they have ये जो sexual satisfaction के लिए problems है उनके. But जो young girls है, with this media, maybe the change in the society or their exposure to this outer world, उनका desire and the practices have changed about the sexual act.
Yes. दे आर गेटिंग एक्सपोज सेक्सुअल एक्टिविटी को बहुत जल्दी. ऑफ कोर्स दे आर वेरी नॉलेजेबल, दे हैव रिसोर्सेज, बट येस उनका सेक्सुअल एक्टिविटी बिगिनिंग बहुत जल्दी हो रहा है. और उसके कारण दे आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स. आजकल यंग लड़के लड़कियां दे हैव स्टार्टेड हैविंग सेक्सुअल एक्टिविटी Very early. बहुत जल्दी. Yes, ma'am. उसके कारण दे आर गेटिंग एक्सपोज टू sexually transmitted disease. And the dangerous and the commonest one is HPV, that is human papilloma virus, जो लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए बड़ा खतरा है. Okay. जो आगे जाके फ्यूचर में उनको कैंसर डेवलप करता है. Okay. सो इसलिए सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमारे पास वैक्सीन्स भी हैं जो उन्होंने लेना चाहिए. देन कम्स कि इससे क्या होता है. अगर वो इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है. बहुत बार लड़कियों को छोटे छोटे वॉट्स आने लगते हैं. वॉट्स या छोटे छोटे ग्रोथ होते हैं प्राइवेट पार्ट्स पे. Okay. जो शुरू में तो पेनफुल नहीं होते हैं, इचिंग नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है और उन्हें लगता है ये तो ठीक हो जाएगा अपने आप, अभी ये किसको बताना है. Okay, exactly. और धीरे धीरे दे स्प्रेड. पूरा प्राइवेट पार्ट उस चीज़ से कवर हो जाता है जो आगे चल के प्रॉब्लम कर सकता है. लेकिन हमारे पास उसके लिए भी ट्रीटमेंट है. Wow, ma'am. So good to know that. हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट है जिससे स्कारलेस ट्रीटमेंट होता है. Okay. स्कार बिल्कुल नहीं आता है, सूचर्स नहीं लगते, जो टाके से डर लगता है वो नहीं लगता है, ऑपरेशन नहीं होता है, सिर्फ लेज़र से वो निकल जाता है. Okay, ma'am. और आगे चल के फ्यूचर लाइफ में इस चीज़ का कोई रिपरकशन नहीं होता है या आगे की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम Occurrence. नहीं. यस. Okay. मैम, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में आप थोड़ा सा और बताइए, बिकॉज बहुत लोगों को पता नहीं है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या है और ये कैसे ट्रांसमिट होता है. तो आप इसके बारे में कुछ बताइए. Yes, it's a very sensitive point, I must say. Sexually transmitted disease ये abnormal sexual behavior से होता है. Okay. Without using contrast. Yes, without using contraceptive, जैसे condoms होते हैं Okay. या female condoms होते हैं, they are Okay. the best to protect. Okay. Now, condoms are basically to help getting infection and secondly to prevent pregnancies Yes. or unwanted pregnancies. Yes, ma'am. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होता है उसके अलग अलग बैक्टीरियाज एंड वायरसेस होते हैं जिसके कारण ये इन्फेक्शन होता है. Yes, ma'am. इन्फेक्शन उसी से होता है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, Okay. जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं और दे चेंज पार्टनर्स एवरी वीकेंड. और जो विदाउट कॉन्डम Yes. सेक्सुअली एक्टिविटी. करेक्ट. सो यूज विदाउट यूजिंग कॉन्डोम्स, हैविंग सेक्सुअल एक्टिविटी विद डिफरेंट पार्टनर्स और जिसको इन्फेक्शन ऑलरेडी है उससे अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होता है तो डेफिनेटली ये ट्रांसमिट होता है. अगर ये किसी को हो जाए, बहुत बार हमारे पास ऐसे आते हैं लड़कियां या लड़के कि कल सेक्सुअल एक्टिविटी हो गया है, अभी मुझे आज इन्फेक्शन हो गया, ऐसे मुझे डर लग रहा है. व्हेन यू आर इमोशनली इनटू दैट एक्ट आपको वो रियलाइज नहीं होता है, बट वंस यू आर डन विद दैट एक्ट आपको लगता है ओ माय गॉड ये तो अभी मुझे हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे Yes, कैंसर हो ma'am. जाएगा. ये बहुत डर लगता है. यस मैम. सो एनीबडी हु इज इनटू दिस प्रैक्टिसेस उन्होंने कंडोम साथ में रखना चाहिए, लड़की हो या लड़का हो. यस मैम. थैंक यू मैम, बिल्कुल मुद्दे की बात करने के लिए. ज़रूर हमारे दर्शकों को ये बहुत हेल्पफुल होगा. करेक्ट स्नेहा, अवेयरनेस तो सबको है बट पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ यूज करनी है, तो कोई तो भी होना चाहिए मीडियम जो बताएगा. मैम, कॉन्डम्स एसटीडीज ट्रांसमिट होने से रोकते हैं, तो आईपिल जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो भी रोकते हैं. इट्स अ मिथ, आई मस्ट से. बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि आज आईपिल खा लिया या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट ले लिया तो कुछ नहीं होगा, ना एसटीडी होगा ना प्रेगनेंसी होगा. ओके. नो, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा हार्मोनल टैबलेट कब खाना है. वो टैबलेट आपके हेल्थ के सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने अवेलेबल किया है. इसका मतलब ये नहीं कि आप हर सेक्सुअल एक्ट के बाद वो टैबलेट पॉप इन कर लो. ओके. उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मैम? देयर आर लॉट मेनी साइड इफ़ेक्ट्स
with these kind of इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स. सो जब आप इमरजेंसी पिल ले रहे हैं या कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं, उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना है. यस मैम. उसका कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को प्रिवेंट करने का कोई रोल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल. और सबको ये टैबलेट की ज़रूर नहीं होती है. अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपने किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेने के बाद ही ये टैबलेट लेनी चाहिए. बिकॉज उसमें काफ़ी सारे हॉर्मोन्स होते हैं और हार्मोन का बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट करता है. काफ़ी बार हार्मोन टैबलेट खाने के कारण डेथ्स भी होते हैं. सो जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो आपको एग्जामिन करके आपका हिस्ट्री लेके फिर ही ये टैबलेट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं. लेकिन आजकल तो लोग बहुत इजीली ये मार्केट में अवेलेबल है मैम. Yes. प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब लोग इजीली ले लेते हैं. करेक्ट. सो हार्मोनल इम्बैलेंस भी इससे होता है मैम. यस, बहुत बड़ा कारण है आजकल लड़कियों में ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने का कि आप कभी भी ये टैबलेट ले रहे हैं जब भी आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं थी. तो आप ये Yes. टैबलेट लेते हैं, आपके बॉडी का सारा हार्मोनल साइकिल चेंज हो जाता है. आगे का साल भर आपका पीरियड्स आगे पीछे ऊपर Irregular नीचे periods. हो जाएगा. कभी कभी 2 महीने पीरियड्स नहीं आएंगे, कभी कभी पूरा महीना भर आते रहेंगे. Yes, ma'am. ये स्किप होना या मल्टीपल टाइम्स पीरियड्स आना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. और लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर आप सोचेंगे, जैसे कि काफ़ी आगे जाके आफ्टर फ्यू ईयर्स क्या Yes, ma'am. होगा, इनको प्रेगनेंसी रहने के लिए प्रॉब्लम्स होगा. जैसे Okay, आपको पता है infertility. यस कि पीरियड्स अगर इरेगुलर है तो प्रेगनेंसी रहेगी कहाँ से. ओके, तो मैम ये पीसीओडी, पीसीओएस ये भी रीज़न होते हैं इसके? यस, इनफर्टिलिटी के लिए तो काफ़ी सारे रीजंस हैं, बट कॉमनेस्ट रीज़न आज अगर हम देखते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो हमारा कल्चर हो गया है. हम कोई भी बच्चों को पिज़्ज़ा हट में लेके जाते हैं Yes, या ma'am. पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, काफ़ी सारे पैकेट फूड खाते So हैं. diet is important. यस, जिसके To कारण control. ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है. और आपको पता है जैसे कि इंडियन पॉपुलेशन इज प्रोन टू हैव डायबिटीज बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेस लेवल, आवर डाइट, Yes, ma'am. एंड अपने बच्चे उस चीज़ को एक्सपोज हो रहे हैं. तो पीसीओडी होता है ये डाइट के कारण, और उसके कारण आगे जाके इनफर्टिलिटी होता है. एसटीडी होता है जो एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर से होता है, और ये एसटीडी भी काफ़ी कॉमन रीज़न है इनफर्टिलिटी के लिए. Okay, मैम. कोई भी हार्मोनल टैबलेट कभी भी खाना विदाउट कंसल्टेशन खाना डेफिनेटली इट मेक्स अ लेडी टू फेस इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स. तो आगे जाके शादी के बाद उनको जब व्हेनेवर दे आर प्लानिंग, नाउअडेज आपको पता है वर्किंग प्रोफेशन, Yes, मैम. शादी का टाइम बहुत लेट बढ़ करते गया हैं, है. बच्चे लेट प्लान करते हैं. लेट क्यों प्लान करते हैं? क्योंकि उनको एजुकेशन लेना है, वर्ल्ड एक्सपोजर मिल Actually, रहा है. priorities are changed now. Yes. Yes, ma'am. सो वी हैव टू कंसिडर दैट. हम ऐसा नहीं बोल सकते अभी चलो शादी कर लो, बच्चे बना लो. नो, अगर आप प्रोफेशनली उतने साउंड है, आपका नॉलेज उतना लेना है, आपको एक्सपोजर मिल रहा है, तो वो बिल्कुल क्यों छोड़ना है. Exactly. वी वॉन्ट टू मूव अहेड, बट वो हमारे हेल्थ में हजार्ड नहीं बनना चाहिए. योर प्रोफेशन शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू योर हेल्थ, Exactly. एंड हेल्थ मेंटेन करने के लिए गुड हैबिट शुड बी मेंटेन इन चाइल्डहुड. Okay, yes. So ma'am. good fitness, as you know, you are fitness freak. Yes, Good ma'am. diet, which of course helps to maintain the healthy brain and healthy body. Yes, ma'am. And then avoid all these problems. आपके every yearly regular checkups होने चाहिए, जो होते हैं. वर्किंग yes, प्रोफेशन ma'am. करते हैं. मैम, आजकल की जो वुमेन्स हैं वो फाइनेंशियली और प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वुमेन्स जैसे आप जानते हैं कि उनकी बहुत सारे मल्टीटास्किंग होती हैं. वो तो उनको घर भी देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं, फिर उनको प्रोफेशनली भी सब कुछ देखना होता है, एंड ये सब में वो अपने हेल्थ इश्यूज पे ध्यान नहीं देती है, उनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं रहता. सो इस पे आप क्या बोलेंगे मैम? प्रोफेशनली जो लड़की इंटेलिजेंट है, प्रोफेशनली साउंड है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो वो खुद का ध्यान ज़रूर रखती है. लेकिन ध्यान रखना मतलब क्या करना, ये बहुत ज़रूरी है कि उसको पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है, सो दैट शी इज़ फिट एंड फाइन. यस मैम. लड़कियां आजकल बहुत कॉन्शियस हो गई है फॉर देमसेल्फ. वी हैव Yes. चेंज्ड
practice have changed since last 10 years. बट मैम आजकल ये भी सुनने मिलता है कि जैसे कि लेट शादी करते हैं, फिर वो बोलते हैं अभी हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है फॉर बेबी, Correct. एंड वो 35 Yes. एवर 40 के एज में वो प्लान करते हैं बेबी. सो वो कितना इम्पैक्ट करता है उनके हेल्थ पे? Zero impact. Zero impact. Okay, age doesn't matter for Yes. this. No, nowadays the definition of age is changed. Okay. We are there to help you always. Okay, fine. So doctors and IVF consultants have solutions for that. Okay. And girls are coming to us So to what? freeze their eggs. ओह मैम, नाइस मैम. आप इसके बारे में थोड़ा और बताइए हमें कि हम एग को कब फ्रीज कर सकते हैं और ये एग्जैक्टली क्या होता है? एग फ्रीजिंग होता है व्हेन यू आर यंग. आपके एग्स जो है ओवरी में जो बनते हैं, हम उनको निकाल लेते हैं एंड वी कीप देम फ्रीज. ओके. एंड जब आप प्रोफेशनली सेट हो जाते हो, जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हो, सो कॉल्ड कि नाउ अ कपल कैन हैव अ चाइल्ड, ओके. सो दैट टाइम हम वो एग्स निकाल के आपके प्रेगनेंसीज बना के आपको दे देते हैं. दे देते हैं मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ बिग प्रोसेस जो IVF सेंटर में ही होता है, तो बट यस इट्स मैम ऑप्शन. लाइक इट्स वेरी कॉस्टली. आप थोड़ा सा कॉस्ट फैक्टर. कॉस्टली इतना नहीं है. अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा. हाँ, वो तो है तो मैम, बट अगर- स्टिल एक अराउंड कॉस्ट मैम. It varies cities to city, centers to center. So around 5 lakhs to 10 lakhs तक उसका एक्सपेंडिचर होता है. ओके. आपका बॉडी, आपका हार्मोन्स, सारी चीज़ें कंसिडर होती है और उससे वो प्लान होता है. कितने साल के लिए आपको फ्रीज करना है, कैसे फ्रीज करना Okay. है, वो सारा चीज़ें होता है. एंड देन वो इट्स अ प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद वो होता है. बट एक्चुअली आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. ये शुरू हुआ कि जो यंग लड़कियों को कैंसर हो रहा था यस मैम. और उनको कैंसर का ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा था, तब उनके ओवरीज फेल हो रहे थे. और ये फेल ओवरी के कारण शी वॉज अनएबल टू हैव बेबीज. यस मैम. उनका कैंसर ट्रीटमेंट होने के बाद अगर उसको बेबी नहीं हो रहा है तो दैट इज सो मच डिप्रेसिंग थिंग फॉर हर. यस मैम. तो उस टाइम स्लोली वी स्टार्टेड फ्रीजिंग द एग्स बिफोर ट्रीटमेंट. मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट देने के पहले वो एग्स प्रिजर्व करने लगे. धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन हुआ, हमारा साइंस भी इवॉल्व हुआ, टेक्निक्स ऑफ फ्रीजिंग चेंज हो गए और लड़कियां भी चेंज हो गई. सो मैम फ्रीजिंग के लिए एज कोई फैक्टर है? Yes, any adult girl can give this freezing consent. 25 ऑनवर्ड्स हम रिकमेंड करते हैं. ओके. अगर आपको कोई मेडिकल डिसीज़ है तो उसके पहले ही कर सकते हैं, लेकिन Okay. 25 के बाद ऑन एन एवरेज सब लोग ऑप्ट करते हैं. और ये एज देयर इज़ नो लिमिट. हम ये एग फ्रीजिंग 25 to 30 ईयर तक डेफिनेटली सेफली करते हैं. ओके. मैक्सिमम टाइम दैट इज़ बीन ऑब्जर्व इज़ 20 ईयर्स. उससे ज़्यादा किसी ने लिया नहीं है. अगर आप 25 साल में फ्रीज करेंगे तो 35 में तो प्लान करेंगे या Exactly. मैक्सिमम 40 में प्लान Exactly. करेंगे. क्योंकि सिर्फ बेबी प्लान करना ये प्रॉब्लम नहीं है. बेबी होने के बाद उसको भी देखना है वो बड़ा होते होते. Yes, ma'am. ऐसा ना हो आप बूढ़े हो गए और बेबी 10 साल का है, नहीं हो सकता वो. सही सो बात वो है. जो अप्रोप्रिएट एज है दैट इज़ 35 to 40, जब हम ये एग जो फ्रीज किए हुए हैं वो यूज़ करते हैं. यस मैम. मैम ये थोड़ा कॉस्टलियर साइड पे है, तो जो कॉमन लोग हैं वो क्या करेंगे इसके लिए? वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्नेहा. यस मैम. यस, कॉमन लोगों के लिए डेफिनेटली ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है. बट अभी आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है जहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं. पहले ये भी पॉसिबल नहीं था. यस मैम. जैसे फैसिलिटी अवेलेबिलिटी का चेंज हो गया है, वैसे ही फाइनेंशियल अरेंजमेंट का भी चेंज हो गया है. ओके. कैसे मैम? पहले कोई इंश्योरेंस कंपनी ये चीज़ को कवर नहीं करती थी, बट अभी मार्केट में काफ़ी सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं और ये काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज आ गए हैं कि जो इसको कवर कर रहे हैं. प्राइवेट कंपनीज जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके यहाँ काम कर रहे हैं, दे हैव बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर एम्प्लॉयज़ और वो उनको इसके लिए दे रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं एंड डेफिनेटली इंश्योरेंस कवरेज भी दे रहा है. लेकिन लोगों का अक्सर ऐसे होता है कि अभी मुझे डॉक्टर ने बोला है, मुझे बेबी प्लान करना है, मुझे IVF का साइकिल करना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी मैं इंश्योरेंस निकालूंगा. ओके. ये नहीं होता है. इंश्योरेंस का जो वेटिंग टाइम है उसका आपने स्टडी करना चाहिए. उस हिसाब से आप जल्दी इंश्योरेंस प्लान कर लीजिए जो आपको सारे
एस्पेक्ट्स कवर करेगा। Yes, और ma'am. डेफिनेटली जो वेटिंग टाइम है उसमें आप आपका हेल्थ फिट करो सो दैट आपको आईवीएफ का सक्सेस आ जाएगा। मैम, अब तक हम वुमेन्स हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा हम मेंस हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो जैसे एग फ्रीज करते हैं, वैसे स्पर्म्स भी फ्रीज करते हैं? यस सीरियसली मैम? यस, इट्स $100 क्वेश्चन। ओके मैम। यस, एग फ्रीजिंग बहुत ज़्यादा हाइप हो गया है डेफिनेटली, बिकॉज वुमेन हैव वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ फर्टिलिटी। यस मैम। मतलब उनका जो फर्टिलिटी विंडो है वो काफ़ी कम है। इफ़ यू से इट स्टार्ट्स फ्रॉम 15 एंड गोज टिल 45। यस मैम। और ये जो एग रिजर्व है या AMH है या जो भी ओवरी का रिजर्व है वो बॉडी बहुत संभाल के यूज़ करती है। यस मैम। जैसे शुरू में काफ़ी सारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं, बट बाय द एंड ऑफ हर फर्टाइल लाइफ धीरे धीरे एग्स कम होते जाते हैं, बिकॉज ma'am. बॉडी को उसको बचा बचा के सेव करके यूज करना है, Yes, ma'am. सो दैट शी स्टेज हेल्दी, फिट एंड फाइन टिल हर मेनोपॉज। सो जो मेल पार्टनर है, मेल पार्टनर कैसे कुछ नहीं है, अच्छा। they produce every 90 days. Every 90 days there is a batch of sperms which comes in circulation. So हर एक स्पर्म का साइकिल होता है 90 डेज का और हर एक एग का साइकिल होता है 20 डेज का। ओके, सो मैम इनका कोई एज बैरियर नहीं है? No. See, fertile age according to us is till 45. So 45 तक on an average all men can produce sperms. ओके। ओके, सो उनका फ्रीजिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं आता है अनलेस देयर इज एनी मेडिकल डिसऑर्डर। और जैसे आप बोलते हैं कि प्रोफेशनली पीपल आर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। आज मैं जापान में काम कर रही हूँ, कल मैं कहीं और जाके काम कर रही हूँ, Yes, कल ma'am. चाइना में हूँ, कहीं US में हूँ। सो इस लाइफस्टाइल के लिए दैट फ्रीजिंग इज हेल्पफुल। यस मैम। Okay, so wherever you are taking treatment, you freeze your sperms there, and जब आपका साइकिल प्लान हो रहा है या IVF साइकिल हो रहा है, आपका स्पर्म्स यूज होता है, बिकॉज आपका टाइम बैरियर नहीं प्रॉब्लम करेगा उस चीज़ में। आपको अगर कोई डिसीज़ है तो हम यंग एज में ही स्पर्म फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीजिंग का प्रोसेस डेफिनेटली दोनों का अलग होता है, बट येस इट इज़ देयर। उसका फैसिलिटी हर एक IVF सेंटर में होता है। वी ऑल्सो डू प्रोवाइड फ्रीजिंग फैसिलिटी। ओके, सो मैम कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है? येस, कॉस्ट इज नॉट दैट मच, नॉट Okay. लाइक विमेन। ओके मैम, ये IVF क्या है? आजकल बहुत लोगों से ये सुनने मिलता है कि हम IVF करा लेते हैं। IVF अगर आप बोलते हैं तो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, जो कवर करता है अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट। जब आप 1 साल से ऊपर अगर कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं करके भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हम उस कपल को बोलते हैं इनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। मतलब शादी के बाद या कभी भी आप अगर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करें, जैसे कॉन्डोम्स हो या हार्मोनल टैबलेट्स हो, वो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं 1 साल तक और फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो कपल इज़ लेबल्ड एज इनफर्टिलिटी कपल। तो उनके अलग अलग टाइप के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं कि मेल पार्टनर के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, फीमेल पार्टनर्स के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, और हम फाइंड आउट करते हैं कि किस में क्या प्रॉब्लम है। बहुत बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, जैसे थायराइड डिसऑर्डर होता है, B12 डेफिशिएंसी होती है, काफ़ी सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, और वो हम फाइंड आउट करने के बाद पर्टिकुलर ट्रीटमेंट उसका करते हैं। वो होने के बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF प्रेगनेंसी करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में 3 स्टेप्स होते हैं प्राइमरीली, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हम फीमेल पार्टनर मतलब जो वाइफ है उनके ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एग्स बनाने का ट्रीटमेंट देते हैं। जब एग्स बन जाते हैं उससे एग रिट्रीवल नाम का एक प्रोसेस होता है, जो अंडर एनेस्थीसिया छोटी सी निडल से हम वो सारे एग्स बाहर निकाल लेते हैं, जो लैबोरेटरी में होता है। ये पेनफुल प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है, आपको पूरा एनेस्थीसिया दिया जाता है और ये हाफ डे प्रोसीजर है। इसको आपको पूरा हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट डे से आप पूरा आपका वर्किंग कंटिन्यू कर सकते हैं। जब एग्स निकल आते हैं तो एग्स और हम पार्टनर के स्पर्म्स लेते हैं और उससे प्रेगनेंसी बनता है। Yes, ma'am. IVF
में होता है कि जो स्पर्म के पूल में हम एग रख देते हैं, और इक्सी नाम का आपने प्रोसेस सुना होगा, जो इक्सी में हम एग को पकड़ते हैं, स्पर्म को पकड़ते हैं और स्पर्म का इंजेक्शन एग में दे देते हैं। ओके। अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं कि Yes, कौन ma'am. से कंडीशन में इक्सी करना है, कौन से कंडीशन में आईवीएफ करना है, वो सारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट का पार्ट होता है या लैब Okay. का पार्ट होता है। और इक्सी और ये आईवीएफ करने के बाद हम ये जो प्रेगनेंसी बने हैं उनको हम इंक्यूबेटर में रखते हैं। इंक्यूबेटर नाम की एक चीज़ होती है जहाँ पे आपका बॉडी एनवायरनमेंट जो है, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया होता है, जहाँ पे ये प्रेगनेंसीज ग्रो करते हैं। यस मैम। ये प्रेगनेंसी ग्रो जब होती है 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन इसको ग्रो करते हैं, और जो एम्ब्रियोज बने हैं अभी एआई की हेल्प से हमें पता चलता है विच इज़ द बेस्ट एम्ब्रियो दैट वी आर ग्रोइंग। ओके। जो बेस्ट एम्ब्रियो है उसको हम निकाल के आपके यूट्रस में रिप्लेस कर देते हैं। ओके। ये सारा प्रोसेस होता है आईवीएफ का या मैम। इक्सी का। इसके अलग अलग है चीज़ें जिसमें आता है, अगर स्पर्म का प्रॉब्लम है तो डोनर स्पर्म लेते हैं, एग का प्रॉब्लम है तो डोनर एग्स लेते हैं, Yes, अगर आपका यूट्रस का प्रॉब्लम है तो सरोगेट मदर होती है। Yes, ये ma'am. सारी चीज़ें लीगली होती है, यस मैम। सारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये लाइफ टाइम डॉक्यूमेंटेशन रहता है। और उसके साथ बहुत पेशेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो बच्चा ये मेरा ही है ना, हाँ, ये स्पर्म मैम। मेरा ही है ना, क्यों कोई डॉक्टर दूसरा यूज करेगा? जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका ही डेफिनेटली जेनेटिकली चाइल्ड होता है, अनलेस आपका वो कंडीशन है जिसमें आपने कंसेंट दिया है कि यस मुझे डोनर का स्पर्म यूज करना है, मुझे डोनर का एग यूज करना है, ओके। उसी कंडीशन में हमें अलाउड है, आपका यूज करना नहीं है, किसी और का यूज करना है। वो भी फिजियोलॉजिकली, जैसे लुक्स में, हाइट में, कलर में, आई कलर में, ब्लड ग्रुप में सिमिलैरिटी ढूंढ के वो डोनर जो फिट है, जिसका फर्टिलिटी प्रूवन है, जिनके बच्चे हुए हैं, उन्हीं का हम यूज करते हैं। वो प्रॉपर ऑफिशियली तो डोनर ये लेबल कंसेंट होते के हैं। साथ होता है। यस, जैसे हमारा ब्लड बैंक्स होता है यस मैम। वैसे ही इस चीज़ का बैंक होता है, जो अभी सेंट्रलाइज प्रोसेस है, उसका एक कमिटी होता है जो डोनर कंफर्म करता है, और उसी के बाद वो अप्रूव होता है आपके लिए, और फिर हम उसका प्रोसेस करते हैं। सो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि आपने एक स्टेप आगे जाना है, डिसीजन लेना है, और आपका प्रेगनेंसी जल्द से जल्द बना के लेना है। यस मैम। मैम, ये आईवीएफ में मैंने सुना है कि ज़्यादातर ट्विंस होते हैं, इस पे क्या बोलेंगी आप? यस, पहले ये होता था कि ट्विंस होने के इंसिडेंट्स ज़्यादा होते थे, क्योंकि हमें आईवीएफ सक्सेसफुल होने के लिए हम 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते थे पहले। लेकिन अभी ये प्रोसेस फुल चेंज हो गया है। जब से ये फ्रीजिंग इम्प्रूव हो गया, जैसे मैंने आपको बताया Yes, एग ma'am. फ्रीजिंग इम्प्रूव हो गया है, स्पर्म फ्रीजिंग, सेम वे एम्ब्रियोज भी फ्रीज होते हैं। अच्छा। और वो एम्ब्रियोज फ्रीज होने के कारण हम सिर्फ एक द बेस्ट एम्ब्रियो विच इज़ बिन सिलेक्टेड हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके कारण ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी, जिसमें ट्रिपलेट्स भी होते थे यस पहले, मैम। वो प्रेगनेंसी अवॉइड करके हेल्दी सिंगल चाइल्ड देते हैं। यस मैम। मैम, हार्मोनल इम्बैलेंस ये मेजर फैक्टर है क्या इनफर्टिलिटी का? बिकॉज हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, सो ये कैसे पता चलेगा कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है? यस, हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ अ बिग चैलेंज। आजकल जैसे हमने बोला कि आप हमारा प्रोफेशनल लाइफ या डाइट और एक्सरसाइज पैटर्न सारा कुछ चेंज हो गया है, जो मेन कारण है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस करने के लिए। और हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ अ बिग चैलेंज फॉर ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी पेशेंट्स, क्योंकि ओबेसिटी कम करो या किसी को वज़न बढ़ाओ, किसी का लाइफस्टाइल चेंज करो, क्योंकि काफ़ी तर लोग आईटी में काम करते हैं, जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो कैसे उनका हार्मोनल बैलेंस रहेगा, है ना? और हार्मोनल इम्बैलेंस सिर्फ यंग या फिर मैरिड कपल्स में नहीं होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यंगर एज ग्रुप। ओके। और कौन लेडी है या जो गर्ल है जिसको हार्मोनल इम्बैलेंस है या नहीं है, किसी को भी ये डाउट आता है मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, मुझे कुछ तो भी हो गया, बट ये ऐसा कभी नहीं होता है। फर्स्ट यू शुड आइडेंटिफाई कि मुझे सच में है क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंस। सो हार्मोनल इम्बैलेंस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपके पीरियड्स इरेगुलर है, जो कोई भी एज ग्रुप में हो सकते हैं। आप यंग है तो भी होंगे, आप मिडिल ग्रुप में है तो ही होंगे, एल्डरली है तो भी होंगे।
यंग एज ग्रुप में आपको बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं। पेनफुल पीरियड्स मतलब हर एक का इंटेंसिटी, पेन टॉलरेंस अलग होता है, लेकिन डेफिनेटली अगर आपके ये पेन के कारण आपका डे टू डे एक्टिविटी हैम्पर हो रहा है, आपको स्कूल से घर आना पड़ रहा है, कॉलेज से आपको आना पड़ रहा है, या आपको वर्क लीव लेना पड़ रहा है बार बार, सो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली गो टूवर्ड्स हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, जैसे महीने में 2 बार आ रहे हैं, Yes, ma'am. या कभी कभी 3-4 महीने हुए तो भी नहीं आते Yes, हैं। ma'am. काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं कि टैबलेट लेंगे तो ही पीरियड्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। शुरू में जब आप टीनेज है या यंग है तो अब तो आपको बहुत अच्छा लगता है, चलो अच्छा पीरियड्स नहीं आए तो गुड, छुट्टी हो गई है, महीने में कोई टेंशन नहीं है। बट जब आप फर्टिलिटी सोचने लगते हैं, जब प्रेगनेंसी सोचने लगते हैं, तब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। Yes, ma'am. बहुत विमेन जो 40s में है, उनको भी लगता है चलो पीरियड मिस हो गए मतलब मेरे को मेनोपॉज आ गया, अपना तो काम हो गया, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, अभी पीरियड्स क्यों चाहिए? Yes, ma'am. नहीं, ये नहीं है। हर टाइम पीरियड्स इरेगुलर हो रहे मतलब ये नहीं होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस और लॉट ऑफ हॉर्मोन्स विच आर बैलेंसिंग योर साइकिल और डे टू डे एक्टिविटी। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे? अगर पेनफुल पीरियड्स है, अगर इरेगुलर पीरियड्स है, अगर आपको विदाउट मेडिसिन नहीं आ रहा है, आपका वेट कम नहीं हो रहा है, आपका वेट बढ़ नहीं रहा है, आपका बहुत चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, Yes, ma'am. तो डेफिनेटली आपके पास इसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली अवेलेबल है। आपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, खुद के टेस्ट करने चाहिए और कंसल्टेशन लेना चाहिए। छोटा सा ट्रीटमेंट, 10 या 15 दिन का ट्रीटमेंट या महीने भर का ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं विथ एक्सपर्ट्स एडवाइस, डेफिनेटली आपका ये लाइफ टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, जिसके कारण आपके आगे के फ्यूचर प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। यस मैम। मैम, ये प्री मेनोपॉज हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है? यस, प्री मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, ये सारे अलग अलग फेजेस होते हैं मेनोपॉज के। इंडियन पॉपुलेशन में, इंडियन क्राउड होता है, उनका जेनेटिक मेनोपॉजल एज इज़ अराउंड 49 ईयर्स। यस मैम। सो कोई फीमेल जिसका पीरियड्स इरेगुलर हो गए अराउंड 40s, तो उसको मेनोपॉज नहीं आता है जब तक आप कंफर्म नहीं करते ये मेनोपॉज है। मेनोपॉज का एज 47 to 50 तक वेरी करता है। ओके। इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इम्पैक्ट करते हैं। द कॉमनेस्ट फैक्टर विच इम्पैक्ट्स इज़ योर ओवेरियन रिजर्व। ओके। देन सेकेंडली योर जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, जैसे आपकी मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, आपकी बुआ है, मासी है, वो सारी फीमेल जो आपके रिलेटेड है, उनका मेनोपॉज कब आया है, उससे आपका मेनोपॉज डिसाइड होता है। मेनोपॉज ये चीज़ ऐसी है कि जो उससे जाता है उसी को उसको सहन करना पड़ता है। नो बडी कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आप प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, आपके फैमिली बैकग्राउंड में इस स्टेज पे पहुँचे होते हैं कि आपसे काफ़ी सारे लोग बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं, आपने एक पोजीशन एक्वायर की होती Yes, है ma'am. और आपकी बॉडी इज़ विड्रॉइंग फ्रॉम दैट यस मैम। बिकॉज योर हॉर्मोन्स आर गेटिंग डिप्लीटेड, मतलब हार्मोन का लेवल कम हो रहा है। लकीली टचवुड, नेचर इज सो ग्रेट, उसने ऐसे सिस्टम बनाया है कि आपका हार्मोन डे 1 पे ऊपर है और डे 2 पे नीचे है, कभी नहीं होगा। Okay, it's gradually There is a slowly. gradual regression of your hormones so that a competent woman who is multitasking will adjust to the change. Okay. But yes, being a very conscious woman, आपने आपके फैमिली मेम्बर्स को भी ये अवेयर कर देना चाहिए कि अगर मैं गुस्सा हो रही हूँ तो ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा हार्मोन्स है जो बोल रहा है। डेफिनेटली Yes, ma'am. यस, दीज आर चेंजेस और इसके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। आप अगर कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो थोड़ा सा सप्लीमेंटेशन, आपका फिटनेस, आपका योगा, डाइटरी चेंजेस, जिसमें हम नेचुरल सोर्सेस ऑफ हार्मोन्स जो होते हैं वो अगर डाइट में इंक्लूड करें तो जो आपके बॉडी में से हार्मोन्स कम हो रहे हैं डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं। Okay, मैम। बट मेनोपॉज में सिर्फ मेंटल चेंज या फिर मेंस्ट्रुअल चेंज नहीं होता है, इससे भी आगे जाके काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जो हमें पता नहीं है। मतलब आपका बोन डिके, आपका बोन जो वीक होता है वो होता है बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स विच आर गेटिंग डिप्लीटेड। सेकेंडली आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कभी सुना है 35 इयर्स लेडी को हार्ट अटैक आया? नो मैम। क्यों? कभी सोचा है? कितने सारे यंग लड़के हम देखते हैं 25, 20s, 30s, अभी कोई लिमिट नहीं है हार्ट अटैक का,
यस मैम। बट जो लेडीज़ है जो 65, 70 या मे बी 50, उनको हार्ट अटैक आता है। Yes. क्यों? बिकॉज थैंक्स टू योर ईस्ट्रोजन। ओके। जो फीमेल हार्मोन है वो आपका हार्ट सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, आपको कभी भी हार्ट अटैक आने नहीं देता है। अरे वाह। सो जब आपका पीरियड्स कम होता है या जब आपको मेनोपॉज आता है तो ये हार्मोन बॉडी से कम हो जाता है। ओके। तो व्हाट इज द टेक होम मैसेज? आपने आपके कार्डियक सिस्टम को स्ट्रांग रखना है। यस मैम। मतलब कार्डियो एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम। अगर आप सालों से एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं तो क्यों होगा कार्डियक प्रॉब्लम? इसीलिए एक्टिव होना चाहिए, फिजिकली Yes. एक्टिव होना चाहिए। सो जब फीमेल्स 40s में आ जाती है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा मेनोपॉज आ गया है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, सब अभी कुछ मैं हो क्या गया। करूँ? नहीं, दैट इज योर सेकेंड बिगनिंग। यू हैव अ गुड चांस टू लिव योर लाइफ द वे यू वांटेड, Yes. बिकॉज आपके पास सब कुछ है। बाय दैट टाइम यू आर सेटल्ड प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, एंड आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो सब अपने अपने वर्क, अपने अपने एजुकेशन में दे आर डूइंग देयर ओन वर्क, Okay. they are trying for their best. So you take a good advantage of this, enjoy your family life, like Okay. with your husband which was missing for 30 years almost, I guess. यस मैम। मैम, ये प्री मेनोपॉज हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है? मतलब ये मेनोपॉज से कितने टाइम पहले स्टार्ट हो जाता है? जैसे मैंने आपको बताया, ये हार्मोन कम होना या चेंज होना, ये मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज चेंजेस होते हैं। इट इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ योर बॉडी फॉर मेनोपॉज। यस मैम। तो शुरू में अराउंड 40s टू बिटवीन 45 आपको थोड़ा सा हॉट फ्लैशेस या फिर पाल्पिटेशंस, नींद कम होना, चिड़चिड़ापन पीरियड्स के पहले ये शुरू हो जाता है, ओके। जिसको बॉडी अपने आप एडजस्ट कर लेती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये सब बंद हो गया। ओके। एंड देन आफ्टर 5 to 6 years these symptoms will grow और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे और Okay. वन फाइन डे दैट पीरियड्स विल स्टॉप। ओके। सो ये जो चेंजेस का है या पेरीमेनोपॉजल पीरियड है, ये 1 साल का होता है। एक साल। सो आपके पीरियड्स अगर साल भर नहीं आते हैं तो हम उसे मेनोपॉज अटेनमेंट बोलते हैं। Okay. मतलब आपका मेनोपॉज शुरू हो गया। ओके। हम कह सकते हैं कि जो प्री मेनोपॉज हार्मोनल इम्बैलेंस है और टिल मेनोपॉज, ये पूरा फेज 4-5 साल। यस, 2 to 3 years इज द 2 टाइम to 3 years। जिसमें प्री मेनोपॉजल चेंजेस होते हैं, जिसको अगर आप सपोर्ट लेते हैं तो ये सिम्टम्स आपको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते हैं। ओके। मैम, मैंने ये भी सुना है कि आजकल एज, बहुत कम एज में ही मेनोपॉज आ जा रहा है। यस, जैसे हम बोल रहे हैं कि डाइटरी चेंजेस या फिर आपका एक्सरसाइज, आपका स्लीप पैटर्न, ये सारा चेंज हो रहा है और उसके कारण मेनोपॉज बहुत जल्दी आ रहा है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। यस, इवन पीरियड्स भी आजकल बच्चे को आ जा रहे हैं। yes, that is all because of the evolution that human race is facing, you can see. Definitely age for periods or puberty age is increased और जल्दी आ रहे हैं, you can say that. ओके। yes, इसको अफेक्ट करता है हमारा लो एक्सरसाइज, फैटी फूड इनटेक, शुगरी फ्रूट इनटेक, बहुत ज़्यादा शुगर लेना, कार्बोहाइड्रेट फ्रूट ज़्यादा लेना, प्रोटीन्स कम लेना, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट contributory factor for this change. ओके। सो न्यूट्रिशनल वैल्यूज इम्पोर्टेंट है। Yes. And let me tell you, इंडियन थाली जो हम बोलते हैं, जब आप वर्ल्ड ओवर कहीं भी जाओ, इंडियन थाली जैसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, ओके। विच इज़ ॲब्सोल्युटली बॅलन्स. अगर आप सिम्पल ले लो, जे आपण डाळ भात, वरण भात, तूप आणि लिंबू हे खातो, दॅट इज द बेस्ट फूड that you get, which is very tasty, which is very healthy, high amount of proteins, good amount of carbohydrates, having fat and vitamin C. ओके। So anybody who is eating this over so many years, क्यों कोई बीमार होगा, उसको क्यों हार्मोनल इम्बैलेंस होगा? कुछ नहीं होगा। यस मैम। मैम, आजकल बहुत सारे कैंसर सुनने मिलता है, तो ये सर्विकल कैंसर क्या है मैम? वेरी हॉट टॉपिक, आई मस्ट से। यस मैम। यस, कैंसर्स का प्रमाण जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि डिटेक्शन ऑफ कैंसर हैज़ बिकम वेरी इजी। ओके। मतलब हम इन्वेस्टिगेशंस इतने अच्छे अवेलेबल हो गए हैं कि हम बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी 100% ले सकते हैं। यस मैम।
जैसे अगर हम आज वुमेन्स हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर है या फिर यूट्राइन और जेनेटल ऑर्गन कैंसर है, जिसमें यूट्रस, ओवरी, ट्यूब्स और सर्विक्स। सबसे कॉमनेस्ट इन इंडिया इज सर्वाइकल कैंसर। यस मैम। आई टेल यू, सर्वाइकल कैंसर जो है उसका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है हमारी पॉपुलेशन में, और इसका डिटेक्शन भी बहुत इजी होता है। ओके। अगर आप इसको बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लो तो आपको 100% प्रोटेक्शन मिल सकता है। सिर्फ हमारा इंडियन क्राउड, इंडियन विमेन बेसिकली बहुत हेजिटेंट है डॉक्टर के पास अप्रोच होने के लिए। यस मैम। अगर हम देखते हैं तो जो सिविलाइजेशन या फिर जो हम मॉडर्नाइजेशन हो गया है, मॉडर्न लेडी इज़ वेरी कॉन्शियस एंड शी वांट्स कि मुझे 100% प्रोटेक्शन चाहिए। बट द वन हु इज़ अनएजुकेटेड, हु इज स्टेइंग फार फ्रॉम द सिटीज़, यस मैम। जो स्टेइंग इन विलेजेस, रूरल एरियाज, यस, उनको ये वैक्सीन या फिर टेस्ट या फिर डॉक्टर, ये बहुत दूर की बात है। कोई ma'am. भी अप्रोच नहीं करेगा जब तक चीज़ यहाँ तक नहीं आएगी। यस मैम। बहुत सिंपल सिम्टम्स होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, जिसमें आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी देयर इज अ स्पॉटिंग या ब्लीडिंग। ओके। और आपके फैमिली में किसी का कैंसर का हिस्ट्री होता है, या फिर आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शंस होता है, आपका बहुत ज़्यादा डिलीवरीज होता है जिसमें ट्रॉमा होता है सर्विक्स को। ओके। दोज विमेन विल गेट हाई चांसेस टू डेवलप कैंसर। तो जब हम सिंपल एग्जामिनेशन करते हैं, जो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट ओपीडी में करता है, इनफैक्ट आवर गवर्नमेंट हैव प्रोवाइडेड द फैसिलिटी टू डू दिस टेस्ट आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। ओके। सिर्फ लेडी को वहाँ जाना है, साल में एक बार अपना पैप स्मेयर का टेस्ट करा के लेना है। पैप स्मीयर, यस, मैम ये क्या पैप स्मेयर जो टेस्ट होता है ये कैंसर डिटेक्शन टेस्ट होता है, जो Okay. कोई भी कर सकता है, कहीं भी होता है, और वहाँ पे कोई पेनफुल चीज़ नहीं है, कोई चुभाना नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, कुछ नहीं। इट इज जस्ट द स्क्रैपिंग ऑफ योर सर्विक्स। मतलब जो यूट्रस का माउथ या फिर जिसको ग्रीवा या जिसको सर्विक्स बोलते हैं, उसके सेल्स टेस्ट के लिए लेते हैं, और उसमें कोई कैंसरस चेंज है क्या, या उसमें प्री कैंसरस स्टेज है, या कैंसर हो गया है, ये टेस्ट होता है, और उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट फाइनल होता है। तो ये तो चीज़ हो गई टेस्ट की, लेकिन हमारे पास इसका प्रिवेंशन भी अवेलेबल है। यस मैम। प्रिवेंशन इज 100% प्रोटेक्शन, जो आता है वैक्सीन के रूप में। अलग अलग कंपनीज के वैक्सीन आते हैं। द बेस्ट कंपनीज 2-3 कंपनीज आर देयर इन द मार्केट, वर्ल्ड वाइड होते हैं। और जो वायरस सर्वाइकल कैंसर करता है, कैंसर सर्विस करता है, वो होता है HPV या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये वायरस आपके सर्विक्स को इन्फेक्शन करता है थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी। ओके। तो वैक्सीन अगर आप लेते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने के पहले, तो आपको ये कैंसर होगा ही नहीं। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो भी आपको कैंसर नहीं होगा। एज, स्टार्ट एज से ले सकते हैं मैम? 15 years of age is the ideal age for vaccination. ओके। आउट ऑफ इंडिया कुछ कंट्रीज में ये वैक्सीन लड़कों को भी दिया जाता है, ओके, बिकॉज दे आर ऑल्सो कैरियर ऑफ दिस HPV. ओके। सी, अगर ये सेक्सुअल एक्टिविटी से हो रहा है तो उनसे ट्रांसफर यस होता होगा। सो अगर कोई कैरियर है और वो आपको इन्फेक्ट कर रहा है, तो बेटर दोनों को भी दे दो ना। तो इसको भी नहीं होगा और जो होने वाला है उसको भी नहीं होगा। ये ड्राइव इंडिया में क्यों नहीं है? देयर आर डिफरेंट रीजंस। अभी उसका स्टडी नहीं है, अभी उसका परमिशंस नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स, बट यस वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग, यू कैन से, मोर ऑन वुमेन। ओके मैम। तो ये जो वैक्सीन आता है, ये वैक्सीन आता है 3 डोज में। यंग एज में सिर्फ 2 डोसेस होते हैं और एल्डरली एज में 3 डोज होते हैं। इट इज सिंपल लाइक टिटेनस, इंट्रामस्क्यूलर वैक्सीन होता है, जो एब्सोल्युटली पेनलेस होता है। अलग अलग स्ट्रेंथ होते हैं जो HPV कवर करता है, बट यस ये जो वायरस है दैट इज ऑफ कोर्स आपके चॉइस के ऊपर आप ले सकते हैं। डॉक्टर्स डेफिनेटली विल रिकमेंड यू विच इज़ द बेस्ट वैक्सीन फॉर यू, और आपने ये डोज लेना है। सो डोसेस आते हैं 3 डोज में। फर्स्ट डोज इज 0 day, second dose is after 1 month, and third dose, which is the last booster dose, it is after 6 months. It gives you protection for lifetime. Okay.
ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 ईयर्स तक ले सकते हैं, कम से कम 15 ईयर्स में आपने ये वैक्सीन लेना चाहिए। ओके मैम। सेकेंड मोस्ट कैंसर हम जो देखते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर कोई भी एज में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ज़रूरी कि जिसका डिलीवरी हो गया है उसी को ब्रेस्ट कैंसर होगा। यंग एज में भी आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि पैप स्मेयर या सर्वाइकल एग्जामिनेशन साल में एक बार ज़रूरी है। सेम वे हर मंथ में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है जब आपके मंथली पीरियड्स या माहवारी या पीरियड्स हो जाते Yes, हैं, ma'am. उसके बाद आपने मिरर के सामने खड़ा रह के दोनों ब्रेस्ट को देखना है और आपके पाम से, खुद के पाम से अपोजिट ब्रेस्ट को पाल्पेट करना है कि Okay. आपको कोई लंप फील होता है क्या, Yes, ma'am. या दिखने में कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखती है क्या, या शेप अलग हो गया है क्या। अगर ऐसा कुछ है तो अर्ली स्टेज में अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर विल फाइंड आउट, सोनोग्राफी होता है या एग्जामिनेशन होता है जिससे हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं। सिर्फ सोचना नहीं है कि मुझे हो गया शायद से, फ्रेंड्स को बताओ, इसको बताओ, उसको बताओ, मैं क्या करूँ, नहीं, सीधा सिंपल उठो, डॉक्टर के पास जाके चेक करके आओ, टेंशन खत्म। यस मैम। मैम, ये डिस्कशन काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए जिनको डर लग रहा है कि आपको कैंसर तो नहीं हो गया। आप प्लीज़, आपको ऐसा लग रहा है तो आप मैम से कंसल्ट कर सकते हो। मैम विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मैम, दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। सॉरी आई एम ट्रबलिंग यू सो मच। मैम, प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमें, जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, फैट लम्प्स हो गए हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ्स हो गए हैं, सो डार्क पैचेस, हाइपर पिगमेंटेशन। सो इससे कैसे ओवरकम करें हम? Yes, very important question. A lot of women have started coming to us for this treatment. So हमारे ग्लैम गायनी क्लिनिक में हमने एक पैकेज बनाया है जिसको बोलते हैं मॉमी मेकओवर पैकेज। अरे वाह। So mommy makeover means what? There are changes in the body pattern. A young girl who was very beautiful, very attractive, very confident before her pregnancy. Pregnancy has given her a beautiful glow and a feeling of completeness. And suddenly after delivery, there is a withdrawal of everything. Yes. As soon as a lady delivers a child, the whole attention of the world goes to the baby. Yes, ma'am. And she gets zero attention. That's the time where she's under stress. Her body is under stress, her mental health is at stress, and of course, you know, the attention from the better half, it is not there, then the whole world goes ups and downs. Yes, ma'am. So yes, considering this point, we have started doing makeovers. What is this makeover? Makeover includes breast enhancement, where the breast become loose and lax due to the lactation and the enlargement and all those changes. Of course, these makeover are after 6 months to 1 year, once the completion of lactation or her breastfeeding part is over. So that time, that includes breast tightening or breast enhancement. Yes. Then secondly, the stretch marks repair. Stretch marks are very much abnormally visible when you wear modern clothes or, you know, swimsuits or different types of Yes, of course, and even though you are not using it, why one should have mark on her body? Yes, ma'am. So we can definitely take those marks out of your body. Then there is a fat deposition which has happened over long months and the years. So we do liposuctions and the repairing of those flaps. That is also the treatment included in this. Then coming to the private parts, there is a enlargement of the labial lips, Okay. as well as there is a loosening of vagina, and there is a pigmentation at your private parts. Yes, ma'am. So that pigmentation removal or the depigmentation process is also available. Then the perfect size making of the lips, or you can say reconstruction of the lips which have become abnormally lengthening or abnormal growth that has happened, or there is an imbalance of the lips, Yes, ma'am. that is reconstructed. And the vagina which has become loose, there is a vaginal tightening process. So everything is painless, everything is done with the lasers, and it is done
with the minimal assistance of different medications. Okay. Of course, it is not one setting treatment. It takes a little time Okay. as the body has undergo these changes over so many months or years. We do treat in that way so that physiologically it comes down to the normal. So there is a weight loss, of course, not a significant weight loss, Yes, only ma'am. the fat reduction which is present at the thighs, buttocks, and the tummy. We take them out. The fat around breast which is taken out, and we have a group which we take patient as a whole body. Okay. So we have a group of dietitian, then we have a group of yoga expert, then we have people like plastic surgeon, dermatologist, and gynec cosmetologist. Okay. So giving the complete treatment and making over of women, getting beautification of their parts, private parts, as well as the whole body. And ma'am, इसके कोई side effects? Absolutely no. Okay. Looking beautiful and confident is the effect. I must say there is no side effect of it. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग. हमारी जनता जनार्दन काफ़ी खुश होगी ये पॉडकास्ट देख के. और हमारी जनता को मैं बोलती हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Sneha, I must congratulate you for taking this wonderful step to making today's women aware about their own health. And your Transform and Grow is the best place. I will request all women out there to go there, have a visit, and take advantage of this wonderful and young lady who is very enthusiastic to make you fit and fine. She will give you advice for your fitness, for your day-to-day activities, and she will make you look wonderful and confident. I must congratulate and wish you the luck for your future podcast. Thank you so much, ma'am. Thank you.